Dear students, I warmly welcome you to the Arabic learning class. Dear students, I warmly welcome you to the Arabic learning class. From here onwards, you will learn simple sentences. I hope you will feel tremendous progress in learning. So far in the previous 4 lessons, you have learnt Arabic alphabets, English equivalents of Arabic alphabets, variant forms of Arabic letters according to their positions in the beginning, middle and end, 10 types of Arabic vowels, 40 Arabic words or vocabularies. In this lesson, we are going to focus on simple sentences using demonstrative pronoun this for masculine and feminine, and interrogative particles what and is it. For avoiding all kinds of confusion that may arise in your mind, I have divided this lesson into 8 sections. In every section I have discussed only one thing. So let's get started. In this section, we will do the revision. As I told you, revision is very important, and we will do the revision what we studied in the lesson 4th and lesson 3rd. So I am going to start from Arabic. I will pronounce the word, stop for a moment, and you think of the meaning in English. Then I will proceed. These are 20 words. Hindiyun, an Indian. Sayihun, a tourist. Tajirun, a trader. Tabibun, a doctor. Muhandisun, an engineer. Mumarridatun, a nurse. Mudarrisatun, a lady teacher. Muhasibatun, a lady accountant. Harisun, a watchman. Sayiqun, a driver. Akhun, brother. Ukhtun, sister. Ibnun, a son. Sadiqun, a friend. Sadiqatun, a girlfriend. Jarun, a neighbor. Mudirun, manager or director. Farrashun, a office boy. Jawazun, a passport. Ta'shiratun, a visa. Dear students, یہ 20 ورڈ وہ ہیں جس کو آپ نے پچھلے 3 اور 4 لیسن میں پڑھا ہے. ابھی میں نے عربک کہی, اب میں انگلش پڑھنے جا رہا ہوں. آپ جیسے ہی میں انگلش کا ورڈ پڑھوں گا اس کے بعد میں تھوڑا سا پاز لوں گا اور آپ اس کا عربک ایکویلنٹ سوچیں اپنے من میں, پھر میں خود کہوں گا. آپ میرے لیے انتظار مت کیجئے گا, یہ آپ کو ریویژن کرایا جا رہا ہے. An Indian. Hindiyun, a tourist. Sayihun, a trader. Tajirun, a doctor. Tabibun, an engineer. Muhandisun, a nurse, lady nurse. Mumarridatun, a teacher, it means lady teacher. Mudarrisatun, an accountant, means lady accountant. Muhasibatun, a watchman. Harisun, a driver. Sayiqun,
brother, akhun, sister, ukhtun, son, ibnun, friend, sadiqun, girlfriend, sadiqatun, neighbor, jarun, manager, mudirun, office boy, farrashun, passport, jawazun, visa, ta'shiratun. Dear students, कहीं मैंने ए लगाया है, कहीं ऐन लगाया है. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं इन तमाम को अरबिक में हम कैसे कहते हैं, और इसको आप गौर से सुन लें. ए, ऐन और बगैर इन दोनों के जो कुछ लगाया गया है वो हम बताना चाहते हैं कि ये इंडेफिनिट नाउन है, और आगे चल करके डेफिनिट और इंडेफिनिट नाउन के बारे में आप पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, दिस इज ए सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस लेसन. ये हमारे लिए दूसरा सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर मैं आपको अरबी के नए अल्फाज सिखाने जा रहा हूं. 40 आप पहले सीख लिए हैं, और इस लेसन में भी मैं आपको 10 नए अल्फाज सिखाऊंगा. तो पहला वर्ड है व्हाट. ये इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स है. व्हाट, इसके मीनिंग है अरबिक में माँ. जब इसको आप प्रोनाउंस करें तो माँ न कहें, आखिर में ये न निकले. माँ, माँ, व्हाट, माँ. जब जहां कहीं आपको सवाल करना हो व्हाट से, जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो यहां माँ का इस्तेमाल होगा. व्हाट, माँ. और जब कभी कहते हैं क्या यह फलानी चीज है, इज इट चेयर, इज इट टेबल, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इनको हम जो सवाल करते हैं इसको कहते हैं हल. इसकी शुरुआत हल से करते हैं. व्हाट, माँ, इज इट, हल. सेंटेंस फॉलो करेगा. फिर देखें दिस मैस्कुलिन के लिए. हादा, जब आप किसी तरफ इशारा करते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. देखिए माँ और हल ये इंट्रोगेटिव है. दिस अरबिक में, अंग्रेजी में दिस हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए करते हैं, लेकिन अरबिक में ये अलग अलग हो जाता है. अगर मैस्कुलिन के लिए हम दिस बोल रहे हैं तो उसकी अरबी है हादा. हादा, दिस. अगर कोई चीज फेमिनिन है उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं. इफ आई एम पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स समथिंग विच इज ए फेमिनिन, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हादिही. मैस्कुलिन हादा, फेमिनिन हादिही. प्रैक्टिस करें. मैस्कुलिन, आप किसी मैन की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं और फिर उसकी तरफ इशारा करके कहें हादा, ताकि वो आप पिक्चर आपके जहन में बन जाए. दिस, किसी फेमिनिन की तस्वीर आप अपने जहन में लाएं. फेमिनिन, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, फेमिनिन. हादिही, हादा, हादिही. ये 4 वर्ड कुछ ग्रामर से ताल्लुक रखते थे. अब जो 6 वर्ड्स बाद में आ रहे हैं ये जनरल हैं. इसके अंदर भी आपको कुछ मैस्कुलिन मिलेगा, कुछ फेमिनिन मिलेगा. फैक्ट्री, मसनाउन. फैक्ट्री, मसनाउन. बैंक, मसरफुन. बैंक, मसरफुन. हॉस्पिटल, मुस्तशफा. हॉस्पिटल, मुस्तशफा. स्कूल, मदरसतुन. स्कूल, मदरसतुन. अब ये देखिए आखिर में जो तुन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फेमिनिन है. स्कूल, मदरसतुन. फार्मेसी, सैदलियतुन. सैदलियतुन, फार्मेसी. ये जो तुन लगा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है ये फेमिनिन है. रेस्टोरेंट, मतआम. मतआमुन. रेस्टोरेंट, मतआमुन. रेस्टोरेंट, मतआमुन. अब मैंने आपको अंग्रेजी से अरबिक में मीनिंग बताया. अब इसी को दूसरे वे ट्रैफिक में ले जा रहा हूं. अब मैं अरबिक पढ़ूंगा और आप उसकी अंग्रेजी करते जाइएगा. जैसे पहला वर्ड है माँ, व्हाट. हल, इज इट. हादा, दिस.
for masculine, هذه, this for feminine, मसनउन फैक्ट्री, इसी के माने है अ फैक्ट्री, मसरफुन बैंक, इसको आप कह सकते हैं अ बैंक, ये इंडेफिनिट है, मुस्तशफा हॉस्पिटल, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं अ हॉस्पिटल, मदरसतुन स्कूल, सैदलियतुन फार्मेसी, मतआमुन रेस्टोरेंट। डियर स्टूडेंट, आपके आसानी के लिए आप अरबिक में जब देखेंगे तो हर वर्ड के ऊपर मैंने वॉवेल लगा रखा है, सबके ऊपर वॉवेल है, और उस वॉवेल के जरिए आप पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि अभी हमारी शुरुआत हो रही है, हमने अभी तक जो है सिर्फ 4 लेसन्स पढ़े हैं, तो इतनी जल्दी आप वॉवेल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कर पाएंगे, और अगर कर न पाते हो तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ये नेचुरल है। तो आपके आसानी के लिए अभी शुरू में अरबिक वॉवेल्स के साथ साथ मैंने रोमन में भी उसका प्रोनाउंसिएशन बीच में लिख रखा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वो जो 4 लेसन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें अल्फाबेट है, इंग्लिश इक्विवेलेंट्स हैं, वॉवेल्स हैं, उसको बार बार रिपीट करते रहें ताकि जल्दी से आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और किसी भी अरबी वर्ड्स को बगैर रोमन स्क्रिप्ट के, उसके ट्रांसलिट्रेशन के आप उसको पढ़ सकें। और अगर वो 4 लेसन पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी, इफ यू आर feeling any kind of difficulty, it is a quite natural. It happens with everyone. In 4 lessons, you cannot grasp. I don't expect that you will be able to grasp all the 4 lessons. So what is good for you? What is advisable for you? That you go from time to time, one section from the alphabet section. One section. यानी one by one, each section आप उसको grasp करने को कोशिश करें। अब हम तीसरे सेक्शन में कुछ ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 3rd सेक्शन ऑफ दिस लेसन एंड दिस सेक्शन इज डिवोटेड टू द ग्रामर। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एब्स्ट्रैक्ट ग्रामर। मैं आपको उतना ही ग्रामर पढ़ाऊंगा जितने की जरूरत है। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न 3 grammatical components. First is the gender. Gender is very important. All the nouns, even lifeless objects in Arabic, are either masculine or feminine. There are 5 types of feminine nouns. Here we are going to learn only one type. Any noun ending with round ta is feminine, like madrasatun, saydaliyatun. आप किसी भी चीज के आखिर में जब ये राउंड ता आता है तो उसको आप फेमिनिन समझिएगा। ये था फर्स्ट पॉइंट हमारे ग्रामर का। और अरबिक में वर्ब हो, नाउन हो, कोई भी चीज हो, या तो वो मैस्कुलिन होगी या वो फेमिनिन होगी इसमें। और जैसे ही मैस्कुलिन होगी तो हम उसके लिए मैस्कुलिन का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर वो फेमिनिन है तो हम फेमिनिन वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको लगाएंगे। दूसरा कंपोनेंट इस लेसन में इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स है। आउट ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, हियर वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग एंड यूज ऑफ 2 इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स एंड दे आर माँ। हमने अभी आपसे शुरू में जब आपको नए वर्ड सिखा रहा था तो उसमें बताया था माँ। माँ मीन्स व्हाट। सेकेंड इज हल। हल हम कहां इस्तेमाल करते हैं? कोई भी लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो इजिट से शुरू होता हो, इजिट, उसके लिए हल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ग्रामेटिकल कंपोनेंट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग एंड यूज ऑफ हादा, सिंगुलर मैस्कुलिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहला क्या है? हादा। दूसरा क्या है? हादिही। ये क्या है? सिंगुलर फेमिनिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पार्टिकल्स। बोथ दीज प्रोनाउंस मीन दिस। हादा हो या हादिही हो, दोनों के माने दिस है। और इनके मीनिंग मैंने आपको जब नए अरबिक के वोकैबुलरी सिखाए हैं तो उसमें मैंने सिखा दिया है। अब मैं यहां सिर्फ कह दे रहा हूं, यहां सिखाने का मकसद नहीं है।
जब हम कहते हैं ये, तो फिर उसके आगे कहते हैं ये दोनों, फिर हम कहते हैं ये सब। ये मैस्कुलिन के लिए भी कहते हैं और हम ये फेमिनिन के लिए भी कहते हैं। ये तकरीबन संस्कृत में, अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो ये आपको इसी तरीके से सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है, इसी तरीके से इनके वर्ब में भी आता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम हर लेसन में सिर्फ एक ही चीज सिखाएंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने इसमें क्या सिखाया है ग्रामर में आपको? पहले आपको मैंने बताया है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में बताया है। तो जो चीज फेमिनिन नहीं होगी वो मैस्कुलिन होगी। तो फेमिनिन में मैंने आज आपको क्या पढ़ाया है कि कोई नाउन जिसके आखिर में राउंडता हो, जैसे साउंड आ रहा है मदरसतुन, तुन, या कहें मदरसा, सैदलियतुन या सैदलिया, दोनों बोलते हैं अरब। तो इस तरीके का जो साउंड होता है उसको हम फेमिनिन कहते हैं। और दूसरा हमने आपको क्या सिखाया है? टू इंट्रोगेटिव। एक व्हाट से जब हम क्वेश्चन करते हैं उसकी अरबिक है माँ, और जब हम कहते हैं क्या ये फलाने चीज है, इज इट सो, उसको हम ट्रांसलेशन करते हैं हल से। तो माँ और हल ये है इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स। और तीसरी चीज हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में सिर्फ सिंगुलर मैस्कुलिन और सिंगुलर फेमिनिन सिखाया है। दिस के लिए अगर वो मैस्कुलिन है तो हादा, अगर वो फेमिनिन है तो हादही। दिस इज फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस लेसन एंड दिस इज मेंट फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ये एक पैरा के अंदर आपको रीडिंग की भी प्रैक्टिस है और इसको आप लिख करके अपनी राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वी विल डू द ट्रांसलेशन आल्सो। तो फर्स्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन बोथ। हादा मसनाउन, पढ़िए मेरे पीछे, आप रिपीट कीजिएगा। हादा मसनाउन, रिपीट करें। हादा मसनाउन। अभी मैंने आपको पढ़ाया है हादा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मसनाउन इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं, जिसके माने फैक्ट्री। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को नाउन के साथ जोड़ते हैं तो टोटल सेंटेंस क्या हो गया? पूरा सेंटेंस हादा मसनाउन, दिस इज अ फैक्ट्री। दिस की अरबी क्या है? हादा। मसनाउन क्या है? फैक्ट्री। दोनों को इकट्ठा किया, हादा मसनाउन, दिस इज अ फैक्ट्री। अब देखिए हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हादा का कर रहे हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है। अब आगे दूसरा देखें, हादा मसरिफुन। रिपीट करें मेरे साथ, हादा मसरिफुन, दिस इज अ बैंक। अब तीसरा सेंटेंस उसी तरीके की प्रैक्टिस, हादा मुस्तशफा, हादा मुस्तशफा। हादा मीन्स दिस, मैस्कुलिन के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, मुस्तशफा हॉस्पिटल, दिस इज ए हॉस्पिटल। हादा मतआमुन, हादा मीन्स दिस, मतआम मीन्स रेस्टोरेंट। हादा मतआमुन, आप रिपीट करना मत भूलें, मेरे साथ करें ताकि आप इसके हैबिचुअल हो, आपकी जुबान अरबी के प्रोनाउंसिएशन के लिए टूटे, उसका आदी बने। हादा मतआमुन, दिस इज अ रेस्टोरेंट। हादा ताजिरुन, देखिए हादा मैस्कुलिन के लिए, तो हम उसके लिए जो नाउन आया है ताजिरुन, ये भी मैस्कुलिन है। हादा ताजिरुन, दिस इज अ ट्रेडर, दिस इज अ ट्रेडर। हादा तबीबुन, हादा तबीबुन। हादा दिस, तबीब मीन्स डॉक्टर, दिस इज अ डॉक्टर। हादा मुहंदिसुन, हादा मुहंदिसुन, हादा मुहंदिसुन। हादा मीन्स दिस, मुहंदिसुन मीन्स इंजीनियर। अब पूरे सेंटेंस के मीनिंग है दिस इज एन इंजीनियर। हादा हारिसुन, देखिए हा निकालिएगा, अरबिक में दो तरीके का हा है, एक है हा, एक है हा, ये बड़ा वाला है हा। हादा हारिसुन, हादा मीन्स दिस, हारिसुन मीन्स वॉचमैन, दिस इज अ वॉचमैन।
हादा सायकुन, अरबिक में दो काफ हैं, एक है काफ एक है काफ, ये काफ गाढ़ा वाला है। हादा सायकुन, हादा सायकुन, हादा मीन्स दिस, सायक मीन्स ड्राइवर। हादा सायकुन, दिस इज ए ड्राइवर, दिस इज ए ड्राइवर। हादा सदीकुन, हादा सदीकुन, देखिए ये साद है, एक आता है सीन, ये साद है, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। हादा सदीकुन, दिस इज अ फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अब यहां तक हमने हादा का प्रयोग किया था और हादा के साथ साथ मैस्कुलिन नाउन लाए थे। अब यहां से फेमिनिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हादिही सैदलियतुन, देखिए अरबिक में एक साद का है अल्फाबेट, दूसरा है सीन का, तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है। हादिही सैदलियतुन, हादिही मीन्स दिस, सैदलिया मीन्स फार्मेसी, दिस इज ए फार्मेसी। अब आप यहां देखें, सैदलिया तो एक दुकान है, लेकिन हम दुकान की वजह से नहीं कहते हैं कि ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। ये अरबिक का वर्ड जो है वो फेमिनिन है, इसलिए हम इसको फेमिनिन ट्रीट करते हैं। हादिही सैदलियतुन, दिस इज ए फार्मेसी। और इसी तरीके से स्कूल के लिए देखें, हादिही मदरसतुन, हादिही मदरसतुन, दिस इज अ स्कूल। हादिही मीन्स दिस, मदरसा मीन्स स्कूल। हादिही तअशीरतुन, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। हादिही तअशीरतुन, दिस इज अ वीजा। ताशीरा इज फेमिनिन, इसलिए कि इसके आखिर में राउंडता है तुन। हादिही तअशीरतुन, दिस इज अ वीजा। हादिही मुमर्रिदतुन, हादिही मुमर्रिदतुन, दिस इज ए नर्स, दिस इज ए लेडी नर्स। हादिही मुदर्रिसतुन, हादिही मुदर्रिसतुन, प्लीज रिपीट करें। मुदर्रिसा लेडी टीचर, दिस इज अ लेडी टीचर। हादिही मुदर्रिसतुन। डियर स्टूडेंट, आपने इसको बड़े गौर से सुना है और उम्मीद है कि जैसे मैंने आपसे कहा है आप उसको रिपीट कर रहे होंगे और रिपीट कर करके अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा। अब एक बार मैं फिर से सिर्फ पढ़ने जा रहा हूं, मीनिंग नहीं बताऊंगा, और आप मेरे पीछे पढ़ने और या उसको सुनने की कोशिश करें। हादा मसनउन, हादा मसरफुन, हादा मुस्तशफा, हादा मतअमुन, हादा ताजिरुन, हादा तबीबुन, हादा मुहंदिसुन, हादा हारिसुन, हादा सायकुन, हादा सदीकुन, हादिही सैदलियतुन, हादिही मदरसतुन, हादिही तअशीरतुन, हादिही मुमर्रिदतुन, हादिही मुदर्रिसतुन। डियर स्टूडेंट, आपने इसको पढ़ भी लिया, ट्रांसलेट भी कर लिया, लेकिन अब आपका काम है कि इसको लिखें, लिखते वक्त इसको प्रोनाउंस भी करते रहें, ताकि आपके दिल में ये बैठ जाए कि कौन वावेल कैसा है, उसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ा गया है। मैं आपको आगे चल करके फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्शन 5 एंड इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डू द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू अरबिक। इसमें हम अंग्रेजी से अरबी में उसका अनुवाद करेंगे। इससे आपकी अरबिक कंफर्म होगी और आप देखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाना आ गया। दिस इज ए हॉस्पिटल, दिस की अरबी हादा, हॉस्पिटल की अरबी मुस्तशफा, दोनों को जोड़ दीजिए। हादा मुस्तशफा, दिस इज ए हॉस्पिटल। दिस इज ए बैंक, दिस हादा, बैंक मसरफ, मसरफुन, हादा मसरफुन, या आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं हादा मसरफ। दिस इज ए रेस्टोरेंट, दिस हादा रेस्टोरेंट, मताम, दोनों को जोड़े, हादा मतामुन या हादा मताम। देखिए इज ए का ट्रांसलेशन उसके अंदर खुद आ जाता है, उसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं आता है कि आप सोचें कि इज ए का क्या है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इज ए खुद से आ जाएगा। दिस इज ए बुक,
this Arabic, hada book, kitab, hada kitab, hada kitabun, this is a pen, hada qalamun, hada qalam, this is a school. अब यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल की अरबी आती है मदरसतुन, फेमिनिन है, तो अब आपको हाज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हादिही मदरसतुन, स्कूल इज ए फेमिनिन, सो वी हैव टू यूज फेमिनिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज ए स्कूल, हादिही मदरसतुन, और यू कैन से हादिही मदरसा, बोथ वे। दिस इज अ वुमन, हादिही इम्राअतुन, दिस इज ए कार, हादिही सय्यारतुन या हादिही सय्यारा, दिस इज ए बैग, हादिही हकीबतुन, या आप कह सकते हैं हादिही हकीबा, दिस इज ए पासपोर्ट। अब यहां देखिए पासपोर्ट इज ए मैस्कुलिन, दिस इज ए पासपोर्ट, हादा जवाज या हादा जवाजुन, दिस इज ए फैक्ट्री, दिस देखिए फैक्ट्री मैस्कुलिन है, दिस इज ए फैक्ट्री, हादा मसनाउन या हादा मसना, दिस इज ए ड्राइवर, हादा सायकुन या हादा सायक, दिस इज ए ट्रेडर, हादा ताजिरुन या हादा ताजिर। डियर स्टूडेंट, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कब मैं ताजिरुन कह रहा हूं कब ताजिर कह रहा हूं। एक्चुअली स्टैंडर्ड अरबिक में ताजिरुन लिखते हैं, लेकिन जब अरब आपस में या किसी से बोलते हैं तो वो ताजिरुन आखिर का प्रोनाउंसिएशन नहीं कुछ करते हैं, ताजिर। फैक्ट्री का मसनाउन नहीं कहेंगे, मसना। पासपोर्ट का जवाजुन नहीं कहेंगे, जवाज कहेंगे। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दोनों तरीके का यूसेज देता जाऊं, ताकि जब आप किताब पढ़ें तब ना कंफ्यूजन हो, या जब आप किसी से बात करें तब कंफ्यूजन ना हो, आपको मालूम हो कि ये दोनों एक ही मीनिंग है। और हमने फेमिनिन को और मैस्कुलिन को मिक्स किया है ताकि आप अपने दिमाग में फेमिनिन और मैस्कुलिन को एक हैबिचुअल बनाएं कि उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको डिस्टिंग्विश करें। उम्मीद है कि ये लेसन आपको आसानी से समझ में आया होगा। और देखिए, जब हमने आपसे कहा था कि आपको सिंपल सेंटेंस सिखाएंगे, तो ये पहला स्टेप है जिसको आपने कहा दिस इज ए ड्राइवर। ये पहला स्ट्रक्चर है। जब आपने इस स्ट्रक्चर को सीख लिया तो आप किसी चीज को भी बता सकते हैं। अब दिस की अरबी कभी भी नहीं बदलेगी। अब उसके बाद जो बताना चाहते हैं, जैसे आप कहना चाहें ये कैमरा है तो कहेंगे दिस इज ए कैमरा, अरबिक में कहेंगे हादा कामेरा। तो हादा के बाद या हादही के बाद सिर्फ आपको एक नाउन ढूंढना है जिसको आप कहना चाहते हैं। अब इसके बाद आप हर चीज कह सकते हैं कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। आप बिल्कुल, आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, वरना बेसिक फाउंडेशन आपके अंदर हमने ले डाउन कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्शन 6th एंड दिस इज ए मेंट फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब मैं आपको 5वें लेसन में अरबिक स्पीकिंग सिखाने जा रहा हूं। इसमें सवाल है और फिर उसका जवाब है। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेगा, हम माँ के साथ बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है व्हाट इज दिस, मा हादा। देखिए, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, दिस इज ए फैक्ट्री, हादा मसना। अब हम उस पर सवाल कर रहे हैं। माँ के मीन्स क्या है, व्हाट। आपने इसी लेसन में पढ़ा है कि माँ इंट्रोगेटिव है, इसके माने व्हाट है। माँ और हादा को इकट्ठा किया तो क्या हो गया, माँ हादा, व्हाट इज दिस। लेकिन जब ये सेंटेंस पूछें तो आपके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगे कि जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। मा हादा, व्हाट इज दिस। अब इसका जवाब क्या है, दिस इज ए फैक्ट्री, हादा मसनाउन, हादा मसनाउन, मा हादा, हादा मसनाउन। अगर मैं किताब की तरफ देखता और कहता मा हादा, तो आप जवाब देते हादा किताब। अब इसमें देखिए, मां इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स है, हादा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन के लिए है। तो एक तो मैंने आपको मैस्कुलिन की प्रैक्टिस करा दिया। अब आइए दूसरा, द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज दिस।
اب یہ فیمنن کے لیے ما ہادہی، ما ہادہی. اب ایسا پوچھئے جسے سوال لگے، ما ہادہی، واٹ از دس؟ اب جواب کیا ہے؟ دس از اے فارمیسی. ہادہی صیدلیتن، ہادہی صیدلیہ. اب دیکھیے میں نے آپ کو پہلا جو لینگویج اسٹرکچر تھا اس میں سکھایا تھا ہادہ مصنع، ہادہی صیدلیہ. یہ آپ کو دوسرا لینگویج اسٹرکچر ہے ما ہادہ ما ہادہی. اب اس کے جواب میں ہادہی صیدلیہ. تو دو لینگویج اسٹرکچر اب تک میں نے سکھا دیا. اب تیسرے سیگمنٹ میں آئیے جو ہمارا 7واں ہے. یہ بھی اسپیکنگ پریکٹس کے لیے ہے، لیکن اس میں کوشچن کیسے کریں گے؟ حل سے کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کیا یہ چائے ہے، کیا یہ کافی ہے، کیا یہ گھر ہے، کیا یہ ہاسپٹل ہے. تو اس طریقے کا جو اسٹرکچر آتا ہے ہم کیسے اس کو ڈیل کریں گے. تو از اٹ کے لیے ہم نے آپ کو کیا سکھایا تھا؟ حل. اب پوچھا جا رہا ہے از دس اے فیکٹری، کیا یہ فیکٹری ہے؟ تو دیکھو از دس کے لیے کیا ہے، یعنی از اٹ اور از دس کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے. از دس کے لیے کیا ہے؟ حل ہے. دس کے لیے ہادہ، حل ہادہ اے فیکٹری مصنعون. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ عربک سنسکرت کی طرح ایک بہت سائنٹیفک لینگویج ہے. از دس اے فیکٹری، حل ہادہ مصنع، حل ہادہ مصنعون. اب آپ نے دو طریقے سے سوال پوچھا. ایک تو پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو جواب دینے والا کہے گا یہ فیکٹری ہے. پھر آپ دوسری طریقے سے سوال پوچھیں گے کیا یہ فیکٹری ہے. اب جواب دینے والا کہہ بھی سکتا ہے کہ ہاں یہ فیکٹری ہے، نہیں تو کہے گا نہیں یہ کوئی اور چیز ہے. اب دیکھیے آپ نے سوال کیا تھا، از دس اے فیکٹری، حل ہذا مصنعون. اب جواب کیا ہے؟ یس دس از اے فیکٹری. یس کی عربی کیا ہے؟ نعم. دس از اے فیکٹری کی عربی کیا ہے؟ ہذا مصنعون. اب ایک ساتھ جواب دیجئے، نعم ہذا مصنعون. آپ ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ کوشچن کریں گے تو آپ کے باڈی لینگویج سے کوشچن نکلنا چاہیے. جب آپ اس کا آنسر دیں گے، ریپلائی دیں گے، تو اس طریقے سے سر ہلنا چاہیے آپ کا. یہ ابھی میں نے آپ کو سکھایا تھا میسکولن کے لیے. اب فیمنن کے لیے کیسے کریں گے؟ از دس اے فارمیسی، حل ہذہ صیدلیۃ، حل ہذہ صیدلیۃ. از کی عربی کیا ہے؟ حل. دس کی عربی کیا ہے؟ ہذہ. ا فارمیسی صیدلیۃ. دیکھیے کتنا آسان ہے. از دس اے فارمیسی، حل ہذہ صیدلیۃ. اس کا جواب کیا ہے؟ یس دس از اے فارمیسی. ہاں یہ فارمیسی ہے. تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ یس کی عربی کیا ہے؟ نعم. دس کی عربی کیا ہے؟ ہذہ فیمنن کے لیے، صیدلیۃ فیمنن فارمیسی. ایک ساتھ پڑھیے، نعم ہذہ صیدلیۃ. اب میرے ساتھ آپ ریپیٹ کریں جب کبھی جواب دیں، نعم ہذہ صیدلیۃ، نعم ہذا مصنع. اب یہ صرف ہم نے آپ کو دو مثالیں دیا تھا. اب آپ یہ کوشش کریے کہ جو آپ کو 50 ووکیبلریز عربی کی سکھائی گئی ہیں آپ ان پر سب پر مشق کریں کہ کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ پین ہے، کیا یہ ٹریڈر ہے. اب ان دونوں کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا تو دنیا کا کوئی بھی سینٹنس جو اس اسٹرکچر کا ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے بتا دیں گے. ہم نے آپ کو اس لیسن کے اندر سمپل سینٹنس کے 3 سے 4 لینگویج اسٹرکچر سکھا دیا. پہلا اسٹرکچر کیا ہے؟ دس از اے فیکٹری، ہذا مصنع. دوسرا اسٹرکچر کیا ہے؟ واٹ از دس، ما ہذا. تو آپ نے کہا ما ہذا. دوسرا کیا ہے؟ از دس اے فیکٹری، حل ہذا مصنع. چوتھا کیا ہے؟ یس دس از اے فیکٹری، نعم ہذا مصنع. تو یہ چاروں لینگویج اسٹرکچر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس طریقے کے جتنے بھی سینٹنس ہوں آپ اس کو بالکل بنا سکتے ہیں. اگر نہیں بنا پاتے ہیں تو پیچھے ریویژن بہت ضروری ہے. اینڈ دس از لاسٹ سیکشن آف دس لیسن. 8واں ہے. دس سیکشن از مینٹ ٹو پریکٹس ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. اب آپ کو دیکھو ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے، بہت ضروری ہے. بغیر اس کے آپ پروگریس نہیں کر پائیں گے. پہلا ورڈ کیا ہے؟ ہندیون. اس کے اندر رومن کے اندر ہم نے ٹرانسلیٹریشن نہیں دیا ہے کے نیچے کسرہ ہے، نے کے اوپر سکون ہے، دال کے اوپر نیچے کسرہ ہے،
या के ऊपर आप देखेंगे शद्दा है और उसके ऊपर दो पेश है, दो दम्मा है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? हिंदीयुन, हिंदीयुन। दूसरा वर्ड सायहुन, सीन के ऊपर फतहा है, सीन के बाद लॉन्ग वावेल है जिसके कहेंगे सा, हमजा के नीचे कसरा है, हा के ऊपर दो दम्मा है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सायहुन, मात्रा देखिए, सायहुन। ताजिरुन में देखें, ताजिरुन, ता उसके ऊपर फतहा, ता के बाद अलिफ है जो लॉन्ग वावेल कहलाएगा जिसमें आपको खींच के पढ़ना। ता, जीम के नीचे कसरा है, रा के ऊपर दो दम्मा है, ताजिरुन। फिर उसके बाद देखें तबीबुन, तबीबुन, ता के ऊपर फतहा, बा के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून, बा के ऊपर दो दम्मा, तबीबुन। मुहंदिसुन, मीम के ऊपर दम्मा, हा के ऊपर फतहा, नून के ऊपर सुकून, दाल के ऊपर नीचे कसरा, सीन के ऊपर दो दम्मा जिसको तनवीन हम कहते हैं। मुहंदिसुन, मुमर्रिदतुन, इसको देखें, मीम के ऊपर दम्मा, दूसरे मीम के ऊपर फतहा, फिर रा के ऊपर शद्दा, उसके नीचे कसरा, दांत के ऊपर फतहा और आखिर में राउंड था जो फेमिनन की पहचान है उसके ऊपर तनवीन, दो दम्मा। कैसे पढ़ेंगे? मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन। डियर स्टूडेंट, हमने एक लाइन को आपके सामने उसका एनालाइज कर करके एक एक वर्ड का कि कहाँ फतहा है, कसरा है, दम्मा है, ताकि आपकी याद भी ताज़ा हो जाए कि वावेल क्या है। फतहा, दम्मा, कसरा, लॉन्ग वावेल अलिफ, वाव, या, फिर शद्दा, मद्दा, फिर तनवीन, यही तो इतने हैं। अब मैं आपको बगैर किसी चीज के पढ़ा रहा हूं, आप मेरे पीछे रिपीट करें। मुदर्रिसतुन, मुहासिबतुन, इसके मीनिंग भी आप अपने जहन में रिकॉल करें। ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मीनिंगलेस हो। हारिसुन, सायकुन, अखुन, उख्तुन, इब्नुन, सदीकुन, सदीकतुन। अब यहां थोड़ा सा रुक जाएं। सदीकुन बॉयफ्रेंड और उसी के आखिर में राउंड ता लगा दीजिए, सदीकतुन गर्लफ्रेंड। ऐसे बहुत सारे नाउन में आखिर में राउंड ता लगा करके हम उसका फेमिनिन बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, हर जगह न लगाएं। जारुन, मुदीरुन, फर्राशुन, जवाजुन, तशीरतुन, ये तमाम अलग अलग वर्ड थे। अब देखिए दोनों मिला करके जो आप पढ़ें उसका, मा हादा, हादा मसनउन, मा हादिही, हादिही सैदलियतुन, हल हादा मसनउन, नाम हादा मसनउन, हल हादिही सैदलियतुन, नाम हादिही सैदलियतुन। डियर स्टूडेंट, इस लेसन को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड किया था और हर हिस्से में एक खास चीज आपको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी है तो वो मेरी तरफ से है, शायद आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसको भी हल करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेसन को खूब एंजॉय किया होगा और आप अपना प्रोग्रेस भी गेज करें कि ये हमारा 5वां लेसन है और इसमें आप 4 तरीके से लैंग्वेज स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों को पकड़िए और उस तरीके से जो 50 वर्ड्स आप पढ़े हैं उसको यूज कीजिए। अब हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट लेसन में होगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।